Okay, so Alok, first let me congratulate you on your selection in prestigious IOCL. Thank you very much, sir. Okay, and second, let me thank you for giving your time to me today for this interaction. Definitely, sir. Your training were really very much helpful. Okay, So this is great. nothing with. So Alok, now this the purpose of this interaction is कि आप जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रीम करते हैं IOCL जैसी कंपनी में जाने के लिए, तो आपकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आता है, whatever you will say, that will be very useful to all such students, and that will help them. So now I start from your introduction only, Alok. Please tell कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में, और आपकी जर्नी कैसी रही यहाँ तक, अब तक आपका, आपने गेट लिखा है, कितनी बार लिखा है आपने, कितना रैंक आपका आया, ब्रांच आपकी क्या है, आपका कॉलेज Yes, कौन sir. सा है जहां से आपने ग्रेजुएशन किया, Yes, sir. सीजीपी कितना रहा, और आपकी कैटेगरी क्या है, ऑल दीज डिटेल्स. Yes, sir. Actually, I belong from a Brahmin family of Gadrwara, Madhya Pradesh. It is a very small place in Narsinghpur district nearby Jabalpur. So my primary education was from here only. I studied in Saraswati Shishu Mandir of our town only. After that, I got selected for Sainik School Riva. There I studied for 7 years. It was a very long journey and very learning enriching journey. In मेरे interview में भी they asked me about my school experience for about 5 to 7 minutes. They spent a lot much time on my schooling also. After completing that, from there I also appeared for defense exams for Air Force, and I could not clear that SSB, and I went for coaching, JE coaching. That time also I got second chance to appear for SSB, but I didn't go that time, and I continued my coaching of IIT. After that, I could not get into IIT, but I got selected for MANIT Bhopal, Maulana Azad National Institute of Technology Bhopal. It is also a very good institute, and I took civil branch there, and it was a very good experience. I was in a few clubs there, and I learned so many things. And there, as you know, मतलब civil पता चल ही जाता है कि स्कोप ज्यादा है नहीं आगे, तो people started to मतलब find other ways. तो हम लोग क्या भी मतलब भोपाल, इन भोपाल दे हैव made easy center, और कोचिंग वगैरह शुरू कर दी, और एज यूजुअल जो मतलब सभी बैचेस में होता है, लगभग 50% हम लोग के बैच के बच्चे भी कोचिंग के लिए जाते थे. So we started coaching. I took a course there and started studying there. But then in final year I was selected for L&T construction, or it was also a very dream job actually at that time for me. और उसके बाद में थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हो ही जाती है when you have one option already, and you don't have that much pressure now, so you just reduce your efforts. तो वही ऐसा ही हुआ, और I appeared for GATE and I appeared for ESE also. That time in GATE my rank was like 4900, and the score was not very good. My score was 49.5 something, 50, approximately 50. And this attempt was in 2019. And ESE also I could not qualify the pre. Then I had no option but to join L&T construction. Okay. I joined L&T construction, or it was a very literally first. It was my first job, Okay. or I liked it also very much. But people there were always motivating me to look for better opportunities. And I also felt this COVID time gave a much of time to think about myself and think about my future. That time I realized here I can get better opportunities, I can do better, or there are much better opportunities in civil constructions also. So I decided to quit that organization. October 31st, 2020 was my last day of that company. I worked there for 16 months, and it was also a very nice experience. And they two things which they asked me were
in interview, they did not ask me any question related to this textbooks. Nothing was asked. They just asked me two problems which were related to practical situations in Delhi, and they asked me my experience at this L&T construction. And first thing was they asked was about my school. So school experience and practical problems. Only these three things, and definitely HR questions were there. Okay, why did you leave that place, and why did you didn't join defense forces, and why do you want to join IOCL? What are the reasons? So after L&T, I appeared for GATE second time. I filled the form for 2020, but I could not appear in that. I filled this form and I prepared really hard, and I was not actually expecting this good result, but somehow it came, and with God's grace and things. I started preparing for ESE, but then in this COVID situation, second COVID, three of my family members got COVID infection. So I came from, I was already preparing in Delhi for ESE and GATE, and I was not doing coaching, but I was doing self-study. I had notes and all, and I was studying with one of my friend, and he's also a reason ki I quit that job and I started studying. He also motivated me ki you should work hard and you should dream for more. So we used to study together. After that, I came So here, what's the name and of your friend? he's actually Santosh. He's my school friend. So after that, I came home and I was in hospital with my uncle for like 10 days, and other people also. Many people had recovered by that time, but I had to come, and then I didn't go back to Delhi, and started studying here only. And I was hoping ki some PSU should uh, advertise their vacancies or something like that, but things got a bit late. So I took admission in IIT Delhi. There also I had not expected ki, though I was already I was always expecting to do MTech in structural engineering, and I got transportation in engineering in IIT Delhi. I was not very happy, but in the last round I got this structural engineering, and I was pretty happy about that. And I was doing that, and I was still hoping ki some PSUs will come and I may get a chance to work for some PSU with this GATE result only. So then PSUs came, and I have filled many forms. Many are still pending. So I got selected. I started preparing. I took course of this Yourpedia also, and I really prepared for this interview. After this interview, I did not prepare for any other interview. Two interviews again I gave, but I didn't prepare much. In this interview, they called me to Delhi. Gurgaon was my center, and there my interview was आलोक, like, नाउ इंटरव्यू वाला पार्ट में थोड़ा डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले मेरे को कुछ क्वेरीज हैं जो अभी तक आपने बताया उसमें से. yes sir. Yes, तो आलोक, आपने बताया कि 2019 में आपने गेट लिखा एंड Yes, sir. आपका 50 मार्क्स के आसपास आए और 4900 आपका रैंक आया. तो Yes, sir. 2019 के बाद आपने 20 में भी लिखा, राइट? 20 में नहीं लिखा सर. 20 में तैयारी किया लेकिन लिख नहीं पाए. 20 में तैयारी भी नहीं कर पाया बिकॉज मैंने ज्वाइन कर लिया था जुलाई 2019 में L&T कंस्ट्रक्शन. ओके. After that, I was working for that company, and I was in Delhi only. I had filled the form, but I could not appear because I had not prepared. Okay, and So what I didn't about appear. 2021? What was the rank and 2021 rank was 217. अच्छा, 217 आपका रैंक था सिविल का. Yes sir. 75.08 was my marks out of 100. अच्छा, आपका कैटेगरी क्या है लोग? जनरल कैटेगरी. तो 217 जनरल कैटेगरी में आपको लगा था कुछ बन जाएगा, पब्लिक सेक्टर मिल जाएगा, खासकर इतना अच्छा पब्लिक सेक्टर? बिल्कुल कभी होप नहीं था कि मेरे को ऐसा मिलेगा. हालांकि बैक ऑफ द माइंड पीपल, मतलब IUCL में जो फ्रेंड्स हैं मेरे, they used to say कि you will get chance, you will get selected, but
मतलब मेरे को कभी भी ये भरोसा नहीं था कि मैं हो जाऊंगा सिलेक्ट, और इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, बट अच्छा, एक आलोक तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे बहुत सा बच्चा, अब जैसे आपने भी यूरोपीडिया में जुड़े थे हमारे साथ, तो बहुत सा स्टूडेंट जो जुड़ा जिनका रैंक उनको लगता था अच्छा नहीं है, लेकिन कॉल आ गया था। यस सर। पहले तो फॉर्म भरने में ऑप्टिमिज्म जिन्होंने दिखाया उनको कॉल आया, यस जिन सर। लोगों ने फॉर्म भरने में ऑप्टिमिज्म नहीं दिखाया उनको तो कॉल ही नहीं आया। नहीं आया, ये जिनको 60 पॉइंट समथिंग उनने कट ऑफ रखा था, तो 60 पॉइंट मैक्सिमम लोग आ समथिंग फॉर जाते हैं। जनरल। यस सर, जनरल के लिए तो उनने लगभग 650 समथिंग बच्चों को बुलाया था फॉर लाइक 125 सीट्स। अब आलोक एक बात फिर हमने जो फील किया कि जिन बच्चों का स्कोर कम था, जैसे सपोज मान लो 64-5 मार्क्स पे है कोई स्टूडेंट, उसको कॉल तो आ गया, कॉल आने के बाद अब वो ये बोल रहा है कि क्या मैं तैयारी करूं क्योंकि मेरा स्कोर पीछे है तो होगा तो नहीं, तो सर तैयारी करूंगी क्या बिना करे जाऊं, इसका क्या आंसर देंगे आप? सर तैयारी तो हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर आप तैयारी कर लेते हैं और आपका बाई बैड लक या बाई चांस नहीं भी होता है, तो वो तैयारी जो आपकी होती है, वो मेहनत जो आप करते हो अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, और एक इंटरव्यू की आप तैयारी करते हो, तो वो आपको आगे कहीं ना कहीं फायदा देगी। अगला आपका पीएसयू आएगा, आईयूसीएल में 125 लोग जा चुके हैं, तो ये लोग अब नहीं बैठेंगे। ओएनजीसी का है, सीआईएल का भी, अभी प्रेजेंट में मैं बोलूं, राइट्स का इंटरव्यू हुआ था, राइट्स के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। अब मेरा रैंक कम था, मैं सोच सकता था कि मैं तैयारी करूं कि ना करूं, लेकिन वो तैयारी कर ली थी। तो राइट्स का एग्जाम भी ऐसा आया था कि मेरे कॉलेज के कुछ उस समय पे सबमिशंस थे और सारी चीजें थी, लेकिन जस्ट मैंने मतलब थोड़ा सा देखा, मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे वो देखे, और चीजें हो गई थी। तो अब इसका इसके बाद में भी मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। प्रिपरेशन तो कर ही लेनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सब इंटरव्यू कॉल आया बिना करना ही तैयारी के जा चाहिए, रहे हो। करना ही चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कई बार चीजें बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो जाती हैं, बहुत ज्यादा सैचुरेशन आ जाता है। तो इस बीच में अगर आपको लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है आपको एक थोड़ा सा चेंज के लिए, तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अच्छा तैयारी आप करते टाइम आपको अपने बारे में, अपने कई सारे क्वेश्चंस का आंसर आप खोजते हो, तो अपने बारे में आप काफी कुछ समझ पाते हो, तो एक इंसाइट आपको मिलता है उसमें। अच्छा लोग, आपने एक बात बोली कि मैंने सर इंटरव्यू कॉल आने के बाद बहुत अच्छी तैयारी की, यस तो सर। वो उसका क्या मतलब था, मतलब आपने क्या तैयारी की? मैंने सर जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने नोट डाउन किए, और एक एक क्वेश्चन पे मतलब हम लोग मेरा फ्रेंड और मैं डिस्कस करते थे कि इसका आइडियल आंसर क्या हो सकता है। और आप लोग से भी जो मॉक इंटरव्यूज होते थे, उनके जो क्वेश्चंस होते थे, जो क्वेरीज आप मतलब सॉल्यूशन देते थे, उस पे भी हम लोग डिस्कस करते थे कि इसमें और क्या हो सकता है, क्या चीज गलत जा रही है, क्या चीज सही जा रही है। अब जैसे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे लिए था कि व्हाई डिड यू लीव एलएनटी एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईयूसीएल, तो इस क्वेश्चन के आंसर्स कई प्रकार से दिए जा सकते हैं। आपने भी कुछ बताए थे, मैंने भी कुछ दिए थे। तो इन सब चीजों को जब आप करते हो, बार बार उन चीजों को स्ट्राइक करते हो, नोट डाउन करते हो। एक ही क्वेश्चन मैंने लगभग दो बार नोट डाउन किया था। पहली बार किया, फिर उसको इम्प्रूव किया आप लोग के फीडबैक से, फ्रेंड्स के फीडबैक से, फिर उसको तीसरी बार फिर किया, और फाइनली जाकर के मैंने उसको कुछ बोला। तो उन्हें भी ये क्वेश्चन मेरे से दोबारा पूछा था, एक बार एचआर ने पूछ लिया, तो लास्ट में जो 5th इंटरव्यूअर बैठे थे, उन्हें दोबारा से मेरे से ये चीज पूछी, और उनने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मतलब उन्हें टेक्निकल कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा कि व्हाई डिड यू लीव एलएनटी इफ यू आर एंजॉयिंग वर्क देयर, एंड व्हाई डू वांट टू जॉइन आईयूसीएल, और इस टाइप से। तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको अपने माइंड में चीजें क्लियर होती हैं, और जब आप नोट डाउन करते हो तो वो फर्क आपको पता चलता है कि आप तैयारी करने के पहले क्या सोच रहे थे, और वो आप अभी 1 महीने प्रिपेयर करने के बाद में, या सारी चीजें रिफाइन होने के बाद में क्या वो शक्ल आई है, तो वो आपको बिल्कुल रिटर्न फॉर्म में दिखता है अंतर। तो लिख लेना बहुत जरूरी है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो सभी को पता है कि ये पूछे ही जाएंगे, सही है। तो वो हमेशा नोट डाउन करने चाहिए। अच्छा आलोक, अब चलते हैं आपके इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ। तो आईयूसीएल के 3 पार्ट थे, जीडी, जीटी और पर्सनल इंटरव्यू। यस मैं सर। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे को जीडी और जीटी के टॉपिक्स के बारे में बता दो, खासकर क्योंकि एचपीसीएल में जीटी भी आ रहा है अभी, और एचपीसीएल के यस भी आजकल चल रहे हैं। तो आप यस जीटी सर। और जीटी के बारे में पहले हमें बताइए।
जीडी में जो उन्होंने हम लोग को 2 टॉपिक का चॉइस दिया था। पहला टॉपिक था कि जो एंटी इनकम्बेंसी लॉ है, जो लोग मतलब जो पॉलिटिशियंस जाते हैं और इलेक्शन जीत करके और पार्टी कई बार चेंज कर लेते हैं मिनिस्ट्रियल पोस्ट वगैरह के लिए, तो दे शुड बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी मिनिस्ट्री फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर दे ज्वाइन एनी न्यू पार्टी। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ, बिकॉज की इनकम्बेंसी लॉ है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है, तो उनको मिनिस्टीरियल पोस्ट जो है वो नहीं ले सकते until they spend 5 years in a new political party। तो दिस वाज द फर्स्ट। एंड सेकंड वन वाज कि प्रेजेंट सिनेरियो में कई सारे इंजीनियर्स जो हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन निकाल रहे हैं, तो गवर्नमेंट का जो पर्पस है कि इंजीनियर्स रिसर्च में आए और न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ रिसर्च करें, तो वो पर्पस डिफीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इस चीज को डिस्करेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम लोग ने सभी ने सेकंड वाला टॉपिक चूज किया कि आईआईटीएंस को या जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों को डिस्करेज किया जाना चाहिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या नहीं। और मेरा मानना है, मैं शुरू तो नहीं कर पाया था लेकिन इस टॉपिक को एंड मैंने किया था। तो कुल मिला के मेरे को लगता है कि जीडी और जीटी जो है ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। जीटी में उनने हमको टॉपिक दिया था कि दिल्ली के पास में, चूंकि कोविड टाइम्स में देखा लोगों ने कि लाइफ स्टाइल कितना क्रूशियल पार्ट है, तो दिल्ली के पास में एक रूरल हब, टूरिज्म हब बनाना है। उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए, क्या जो जितना भी मतलब डिटेल्स हैं सारी डिस्कस करो और एक प्लान बनाओ कि रूरल टूरिज्म हब दिल्ली के पास में कैसे बनाया जाए। तो इसकी शुरुआत मैंने की थी। फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की थी और शुरू के कुछ टॉपिक मतलब पॉइंट्स जैसा कि हम लोग करते थे इधर भी वो मैंने रखे थे और उस पे चला था। हालांकि इसको क्लोज नहीं किया था मैंने, लेकिन मेरा पार्टिसिपेशन अच्छा था। अच्छा आलोक, आपको क्या लगता है 15 में से कितने नंबर मिले होंगे आपको? 15 में से जो मैंने कैलकुलेट किए 11.8 नंबर है मेरे। मतलब 12 के आसपास मिल गया आपको? 12 का नंबर मिल गया और 12 से ज्यादा मिले भी नहीं है किसी को। ऐसा एक पोल था तो उसमें लगभग 25% लोग को 11 से 12% मिले हैं, 12 नंबर मिले हैं, और बाकी 75% लोगों को 11 नंबर से कम ही मिले हैं। तो मेरे को लगता है कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो इंटरव्यू की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरा जो स्कोर है वो तो कट ऑफ के नीचे ही था, गेट स्कोर। अच्छा आलोक, अब इंटरव्यू के बारे में आ जाते हैं। थोड़ा इंटरव्यू के बारे में हमें बताइए, कैसे चला था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा हुआ था शाम को, मतलब लास्ट थर्ड इंटरव्यू था मेरा। मेरे बाद शायद सिर्फ 2 ही लोग रह गए थे। तो मतलब काफी स्ट्रेस भी हो गया था कि अब कैसा रहेगा। हालांकि इंटरव्यूअर जो थे काफी फ्रेंडली थे और मैम थी जस्ट सबसे पहले एचआर मैम, उनने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि कहाँ से हो, कैसा है, फैमिली में कौन कौन है और कहाँ से स्कूलिंग, सारी चीजें बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया। तो उन्होंने मेरे से काफी फ्रेंडली क्वेश्चन पूछे और एक तरह से उन्होंने मेरे को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया और फैमिली के बारे में पूछा। फिर उसके बाद में स्कूलिंग पे उनने काफी कुछ क्वेश्चन पूछे कि स्कूलिंग में क्या रूटीन था, क्या क्या खेलते थे आप, क्या क्या करते थे, क्या क्या चीजें की, क्या क्या चीजें सीखी। तो उनका फिर एक क्वेश्चन था कि बीइंग इन सैनिक स्कूल योर ऑब्वियस चॉइस शुड हैव बीन जॉइनिंग डिफेंस सर्विसेज। तो आई सेड कि आई अपीयर्ड वंस बट आई कुड नॉट क्वालिफाई and I already had in that situation for 7 years and इतना टाइम मेरे को लग गया था कि मेरे को पता चल गया था कि मेरे को जाना है कि नहीं जाना है। और मैंने सोचा कि टेक्निकल फील्ड, चूंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक था शुरू से ही, तो मेरे को लगा कि मैं टेक्निकल फील्ड्स में ज्यादा अच्छा करूंगा, ज्यादा बेहतर करूंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे से एलएनटी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, सेकंड इंटरव्यूअर ने। और एलएनटी के एक्सपीरियंस में मैंने उनको काफी अच्छा काम भी किया है और सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई और काफी इम्प्रेस भी हुए मुझसे। फिर उन्होंने ही मेरे से दिल्ली की 2 प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा था। बेसिक प्रॉब्लम जो फ्लड, अंडर पासेज में फ्लड्स हो जाते हैं या एक फ्लाईओवर के ऊपर से भी पानी झरने जैसा गिर रहा था। तो इस टाइप से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के हैं और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है और डिजाइनिंग में क्या एरर रहे होंगे जिनको सुधारा जा सकता है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछी। फिर उनने एलएनटी के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था
कि क्या कुछ एक मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक, हमने एक्चुअली M60 ग्रेड कंक्रीट पे काम किया था, डेंस कंक्रीट पे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे, एक सर थे तो उन्होंने जस्ट ये पूछा था कि आपके हमारे कॉलेज से अभी सेकंड रैंकर जो हैं सिविल सर्विसेज का, उधर ही 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया था उसका। तो उन्होंने उससे पूछा था कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट दोज काइंड ऑफ फील्ड्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स और नॉट। तो आई सेड कि सर आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज फील्ड्स, those being administrative fields, and I am purely technical person and would like to work in a technical field also. फिर लास्ट जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मेरे से दोबारा से वो क्वेश्चन पूछा कि why did you leave L&T and why do you want to join IOCL। तो अगेन मतलब पहले जो मैंने चीजें बताई थी उनको सेम चीजें रिपीट की और भी कुछ उसमें ऐड किया। तो कुल मिला के मतलब मेरे को ये लगता है आई वाज ऑनेस्ट the whole time. I was honest कि मतलब what were the problems with me in L&T and what I was expecting to get in IOCL. I was very honest the whole time. They said कि you look very interested in working at L&T and your work is also very interesting. So I said कि but sir the basic things which a person needs is a good life in a company and good stability and good career growth. So those things were lacking in that company, my previous company. And I straight away said he also pointed out कि are you coming just only for the stability or job security? मैं कहा sir this is not the only reason but this is a reason. हाँ, you feel it bad or not but this is मतलब I didn't say this, लेकिन मैंने उनको कहा कि सर दिस इज वन ऑफ द रीजन। और सही बात भी है क्योंकि आप मानो बोलो या ना बोलो, दिस इज अ रीजन। और आई थॉट कि बीइंग ऑनेस्ट इज वेरी गुड, बीइंग ऑनेस्ट इज ऑलवेज वर्क्स। तो आलोक आपका जो मतलब बीइंग ऑनेस्ट होना और आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो बताया है, आई थिंक दैट हैज वर्कड इन इंटरव्यू फॉर यू, राइट? यस सर। बाकी आलोक अब एनी मैसेज यू हैव फॉर स्टूडेंट्स? बहुत से ऐसा बच्चा है जो ऐसी जॉब्स में जाना चाहता है, प्रेस्टिजियस जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं ये, तो बहुत सा स्टूडेंट है जो स्ट्रगल कर रहा है जाने के लिए, तो आप क्या एडवाइस करेंगे उन सब बच्चों के लिए? मैं एडवाइस करूंगा जैसा मैंने फील किया है, सबसे बड़ी चीज है पेशेंस और परसिवरेंस। आप कंटिन्यूअसली अपने एम को चेज करते रहो, कम व्हाट मे, you have to chase your targets, you have to keep going. Failures will come, no doubt. I have got selected with a very less margin, somebody have not been selected with a very less margin, but this may happen ki next time they will be selected. But you have to be in the race up till that point you are selected. तो लगे कि किस अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपको पेशेंट रहना है, आपको परसिवर करते रहना है, आपको चेज करते रहना है, और बी मोटिवेटेड ऑलवेज एंड सराउंड योरसेल्फ विद मोटिवेटिंग पीपल, प्रोग्रेसिव पीपल, पॉजिटिव पीपल who motivate you to work even harder, even better. मतलब नेगेटिविटी हर तरह की है। पहले लोगों को यार इतना कंपटीशन है, कौन तैयारी करेगा, फिर बोलेगा नहीं अब कॉल तो आ गई लेकिन यार रिटर्न में नंबर तेरे ज्यादा नहीं है तो तेरा होगा नहीं, फिर तैयारी छोड़ो, बिना तैयारी के जाओ। मतलब ऐसे नेगेटिविटी पूरी भरी पड़ी है। मतलब हम सरप्राइज के इंटरव्यू कॉल आने के बाद भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि तैयारी करके जाएंगे, बिना तैयारी के चले जाएं, सर हमारा रिटर्न में तो नंबर ज्यादा नहीं है। दिस I don't call it even pragmatic approach, I call it negative approach actually. Negative, it is definitely negative approach. क्योंकि पॉजिटिव होके लाइफ में ही गेन किया जा सकता है, as you rightly said. और सिलेक्शन रिजेक्शन एक्चुअल में ही अपने हाथ में नहीं है। हो सकता है 2-1 नंबर आपके कम होते तो शायद तुम्हारी सिलेक्शन ना हो। नो डेफिनेटली सर, दो लोग जो हैं जिनके बराबर नंबर आए हैं या थोड़े से भी कम ज्यादा हैं, तो हो सकता है जिसके कम आए हैं वो ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन कई बार थोड़ा सा लक भी होता है, थोड़ा सा कई चीजें और मैटर करती हैं, तो इसलिए जस्ट फाइट में बने रहो, रेस में बने रहो। सही है। चलो आलोक, तो लेट मी विश अगेन वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, very great career ahead, and congratulations to you, your entire family, and thanks for your time. Thank you very much.